जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स। आज हमारे सेशन में आज की हमारी 38th क्लास है। तो आप सबको सबसे पहले दिल से वेलकम करती हूँ। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम पजीर हुआ। अब हम मगफिरत के अशरे में है। पहला अशरा रहमत का अशरा था, अब हम मगफिरत के अशरे में है। तो बस दाखिल हो चुके हैं और अल्लाह ताला हम सबकी मगफिरत फरमाए और हमें बेहतरीन इंसान और बेहतरीन वालिदैन बनाए और तौफीक दे ऐसा करने की। अल्लाह ताला हम सबको इसी बाबरकत महीने में ये सेशन भी हम सब के लिए रहनुमाई की तरफ जाएगा, बेहतरी का जरिया बनेगा इंशाल्लाह, आमीन। तो चलिए इसी पॉजिटिव नियत के साथ आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। आदाब मनोज भाई, कैसे हैं आप? जी, आदाब मुनसफ़ा। मैं ठीक। जी तो सेशन में सबसे पहले कि जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम मेडिटेशन की वीडियो प्ले करते हैं, तो हम चलते हैं मिस लैला या मिस राहत की तरफ या मनोज भाई की तरफ, जो भी इस मेडिटेशन की वीडियो को प्ले करेगा। हमें मेडिटेशन को 10 मिनट तक अपने अंदर ऑब्जर्व करना है, उसको महसूस करना है। उसके बाद अनाबिया या मनोज भाई, सॉरी, रुबानिया या मनोज भाई हमें उसकी बारे में बताएंगे, मेडिटेशन इज क्यों इम्पोर्टेंट फॉर अस। सो ओवर टू यू मिस लैला, मिस राहत। अ, जी, मिस लैला, आप वीडियो प्ले कर रही हैं? जी मैम। राहत, क्या आप करेंगी या मैं करूं? ओ, अच्छा, वीडियो प्ले करने से पहले मैं थोड़ा-सा मैं बता दूँ कि वीडियो में जो है, बीच में से कुछ साइलेंस भी हो जाती हैं। तो उस टाइम जो है आपने 10 मिनट की वीडियो है, तो आपने कोशिश करना है कि तब तक आप अपनी आँखें नहीं खोलेंगे कि जब तक आपको कहा ना जाए कि नाउ यू Why ओपन I'll योर never आइज़। go back. First ठीक है? off, it actually अ, Welcome to a guided Vipassana meditation. थोड़ा-सा स्टॉप करें, ठीक है? तो ये अब वीडियो प्ले होने के जा रही है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग सीधे होके आराम से पुरसुकून होके पहले बैठ जाएँ और अपने हाथों को पुरसुकून होके अपने टाँगों पे, अपने लेग्स पे रख दीजिए पुरसुकून होके। और अब धीरे-धीरे सभी लोग अपनी आँखें बंद कर दीजिए। On declutter the mind. So, in this practice, we will be developing mindfulness with the Buddhist practice called Vipassana, which in Pali means clear insight. And this is a simple introduction to this meditation practice. And so, you don't need to be Buddhist or religious to enjoy this mindfulness meditation. And so, to start, find a chair or cushion on the floor, sitting with your back upright and comfortable, resting your hands in your lap. And now close your eyes. And now let's bring our attention to the breath. We will be using the breath here to anchor our attention and help still the mind from all the thoughts, perceptions, emotions, and feelings that surface. And so we're not changing anything about the breath here. We're simply watching the breath with a gentle, effortless attention. And then, whenever something arises in the mind and attempts to pull our attention away, we gently bring our minds back to the breath. And if it helps,
Notice where you most easily detect the breath. So maybe it's the air passing in through the nose and nostrils. Maybe it's the air passing out through your lips and mouth. Maybe you notice the movement of your chest as it rises and falls with each breath that passes. And so, whatever allows you to effortlessly watch the breath, sit your attention there as you allow thoughts and perceptions and feelings to pass through the mind without taking your attention away from the breath. And if you find that the mind has drifted off into thoughts and thinking, that's okay. We just gently bring the mind back to the breath without frustration, without adding more thoughts. And if it helps here, we can use labeling and noting to recognize the distraction before bringing our attention back to the breath. And so if a sound in the room distracts you, label that as hearing before bringing your attention back to the breath. And if your mind wanders to planning the day ahead, bring your attention back to the breath and label that as thinking. And see if you can actually glean the insight of being inside of a thought versus outside of a thought. Noticing a thought versus getting lost in it is very different. And so we can't stop the mind from thinking, but we can be outside of our thoughts. It's a different feeling. It's more awake. It's more present. This is part of Vipassana. This is the insight we can experience and practice when we notice thoughts while anchoring our attention for the next few moments.
And if there are any feelings, thoughts, or perceptions that are present and particularly strong today, such as boredom or thinking about the future or stress, we can allow these objects to temporarily become the subject of mindfulness. So, with a soft and open awareness, place your attention on this strong feeling or thought for a moment. And as you fully attend to this object, does it become more intense or does it dissipate? See what happens when you place an open awareness on it. See if it changes. Again, being outside of it versus inside of it. And then when the subject dissipates or when the object loses its strength, gently return to watching the breath with an open awareness. And now open your eyes and notice how you feel. जी तो थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल मेडिटेशन। उम्मीद है कि आप सब ने इस लम्हे को फील किया होगा और अपने आप को थोड़ा हल्का और थोड़ा फोकस महसूस किया होगा। तो अब हम मेडिटेशन के फायदे जानते हैं कि मेडिटेशन रोजाना की बुनियाद पर क्यों जरूरी है। तो जी मनोज भाई। जी, तो जो हमने मेडिटेशन की, उसका जो नाम था वो है, कहते हैं आनापाना। आनापाना जो है उसे कहते हैं आना और पाना। आना कहते हैं ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट, यानी सांस अंदर लें और सांस बाहर छोड़ें। जब भी हम किसी परेशानी में आ जाते हैं या टेंशन में आ जाते हैं या घबराहट से होने लगती है, कुछ भी होता है, तो हमारी आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है ना, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज पे तो इफ़ेक्ट होता है, लेकिन आपकी सांसें जो है वो बदल जाती हैं एकदम से। अगर आप डिप्रेशन में हो, गुस्से में हो, तो आपकी सांसें जो है उसकी रफ्तार ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और उसके बरक्स अगर आप मायूस होते हैं, उदास होते हैं, तो आपकी सांसें जो है बिल्कुल धीमी हो जाती है। तो इसका मतलब हमारा जो सांसों का ताल्लुक है, वो हमारे जज़्बातों से बहुत गहरा है, इसका ताल्लुक है। तो जब हम अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं, फ़ोकस करते हैं, तो आप देखते हैं, तो आपकी जो सारी जो सोचें हैं, वो आपकी कहाँ जाती है? एक जगह पे आ जाती हैं, सारी सोचें। तो इसीलिए हम जो है सबसे ज़्यादा हम मेडिटेशन पे, साँसों पे ज़्यादातर फ़ोकस करते हैं, ताकि जो भी टेंशन हो, परेशानियाँ हो या उदासी हो या मायूसी हो, वो आपकी क्या हो जाए? वो आपकी बैलेंस होना शुरू हो जाए और आप जो है बिल्कुल ठंडे हो जाएँ, आप बिल्कुल कहते हैं शांत हो जाएँ, आप पुरसुकून हो जाएँ। तो इसीलिए जो है हम मेडिटेशन करते हैं और हम सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस करते हैं हमारी साँसों पे। इसीलिए वीडियो में देखा होगा कि
ये जो ऑडियो थी, आप कह रहा था कि सबसे ज़्यादा फ़ोकस कहाँ करें? वो आप अपनी साँसों पे लगाएँ। बार-बार जो है ख़्यालात क्या होते हैं, जब हम आँखें बंद करते हैं तो ख़्यालात आना शुरू हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो हम क्या करें, अपना जो ख़्यालात हैं, उसको छोड़ के हमारा फ़ोकस कहाँ करें? बार-बार हम कहाँ फ़ोकस करें? साँसों पे फ़ोकस करें। इसकी एग्ज़ाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे अगर घोड़े हैं, ठीक है? अगर हम घोड़े को लगाम ना लगाएँ तो क्या होगा? घोड़े यहाँ-वहाँ भागेंगे, ठीक है? तो इसी तरीके से हम अगर अपनी तवज्जो अगर साँसों पे नहीं लगाएँगे तो क्या होगा? आपके ख़्यालात यहाँ-वहाँ भागेंगे। तो हमें अपने ख़्यालों को क्या करना है? लगाम देने हैं और कहाँ पे फ़ोकस करना है? अपनी साँसों पे फ़ोकस करना है। तो इस तरीके से जो है हम मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन के फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं। तो मेडिटेशन हमें पुरसुकून करता है हमें और जो प्रेज़ेंट वक़्त है जो अभी आप बैठे हो यहाँ पर, इस प्रेज़ेंट मोमेंट में लाता है। तो ये जी। जी थैंक यू सो मच मनोज भाई, हमेशा की तरह लेकिन रुबानिया भी इस मौके से फायदा उठाएं। तो जी रुबानिया, आप अपने मनोज भाई के बातें सुन के क्या कहना चाहेंगी मेडिटेशन के हवाले से? ओके, तो मैम जो सर मनोज ने कहा वो बिल्कुल एकदम सही था, और जो उन्होंने फोकस का और जो ख्यालात आते हैं मेडिटेशन के दौरान, उन पे हमें उनको साइड पे रख के हमें बस अपनी सांसों पे फोकस करना चाहिए। और साथ ही साथ जो उन्होंने जो मेडिटेशन थी उसका आना, जो भी उन्होंने मतलब बताया था कि उसमें सांस लेना और सांस छोड़ना, तो वो तो मुझे पहले पता नहीं था, वो सर मनोज ने बताया तो मुझे पता चला। तो वो जी थैंक यू सो मच रुबानिया, थैंक यू सो मच मनोज भाई। अब इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ और माइंडसेट के साथ हम अपने सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं कोई प्रिंसिपल नहीं बन रही ना, मैं वो डंडे वाली बहुत सख्त वो बन रही हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है कि बैकग्राउंड कहाँ है? जिनको मैंने जुम्मे वाले दिन बैकग्राउंड दिया था, ग्रुप में भी दिया था, पर्सनली भी दिया था, उन सबका बैकग्राउंड कहाँ है? प्लीज मुझे थोड़ा सा ये बता देंगी। और मैंने कहा भी था कि हमारे हाथ में 3.5 दिन है। अस्सलाम वालेकुम। मिस, मैंने आपसे पर्सनली शेयर भी किया था कि मेरे मोबाइल में ऑप्शन नहीं आ रहा, तो बच्चों ने सबने बहुत कोशिश करी लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे मोबाइल में नहीं लग सकता। अपग्रेड भी कर लिया मोबाइल को लेकिन कुछ नहीं हुआ। ठीक है मिस सुबह, सही है। अच्छा, और लुबना राफे मिस हमारे साथ पहली दफा आई हैं। राफियाज मदर नहीं आ चुकी हैं, राफिया और राफिया की मदर। मिस आपको भी बैकग्राउंड का पता होगा, बच्चे तो माशाल्लाह जीने से जाते हैं अब। वालेकुम अस्सलाम। मिस, मैं पहली बार नहीं आई हूँ, मैं तो क्लास लेती रहती हूँ, आपको पता है। और मिस मेरा भी यही मसला है, मैंने इतनी कोशिश करवा ली, बच्चे से भी दिखा लिया, लेकिन बैकग्राउंड नहीं लग रहा मोबाइल में। मैं मोबाइल में क्लास लेती हूँ तो इसलिए मोबाइल में नहीं लग पा रहा। मैंने भी बहुत कोशिश की है। ठीक है मिस, मैं कल तो इंशाल्लाह जीनियस एकेडमी जाऊंगी, तो मैं कल जाके खुद भी बच्चों को दिखाती हूँ, बताती हूँ, जो भी मुझसे बन पड़ेगा कोशिश कर सकती हूँ मैं भी। अच्छा जी, आज हमारे साथ मौजूद है मदर ऑफ उमर बिजनेस वाला। जी अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? अच्छा, एक बात आप सब मदद से मुझे कहनी है और बार बार मैं कहती हूँ कि बिल्कुल रेडी बैठा करिए कि आप लोगों से किसी से भी सवाल हो सकता है। उस वक्त सब बौखला जाते हैं कि वॉइस कहाँ से खुलता है और ये क्या मेरा नाम ले रही हैं, क्या मैं ही उमर बिजनेस वाला की मदर हूँ या मैं ही मोने सत्तर इंडिया वाली हूँ? तो ऐसा अनएक्सपेक्टेड ना बैठिए, बिल्कुल चौकस होके बैठिए, चाको चौबंद जैसे बैठते हैं ना वैसे बैठिए। तो थैंक यू सो मच। जी मिस मदर ऑफ उमर बिजनेस वाला, आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज अपना वॉल्यूम खोलिए और मुझसे बात कीजिए। चले हम सवाल लेते हैं। जी हानिया फरहान, अस्सलाम वालेकुम। जी मैम। मिस आपकी आवाज नहीं आवाज आ नहीं रही। आ रही।
मिस आपकी आवाज नहीं आ रही। मिस मोइजा आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मिस राहत, ओवर टू यू। तो आप किस टॉपिक पे आज बात करना चाहेंगी? मैंने तो भाई बैकग्राउंड के हवाले से बात कर ली। मिस सदफ का भी नहीं लगा हुआ। मिस सदफ, आपके पास क्या एक्सक्यूज है? ओ, मदर ऑफ हया का भी नहीं लगा हुआ जी मिस। और मदर ऑफ फहद का भी नहीं लगा हुआ जी मिस। आप तीनों। अस्सलाम वालेकुम मिस। मिस कोशिश की थी, नहीं हो रहा। मिस मोनिस, पांच दफा मैंने कोशिश की है। बच्चों की कंप्लेन करते हैं पेरेंट्स से, आप पेरेंट्स की कंप्लेन करेंगे इनके बच्चों से? मिस अहमान ने भी कोशिश की थी, 4-5 दफा कोशिश की है, हो ही नहीं रहा है। चले क्रोम बुक मिस क्रोम सदफ, बुक में भी नहीं हो रहा। क्रोम बुक में भी नहीं हो रहा? नहीं। अच्छा। चले मिस, ये तो बड़ी अच्छी बात बता दी आपने, ये तो हमें पता ही नहीं था। चले देखते हैं क्या कर सकते हैं। कल जीनियस जाऊंगी तो इंशाल्लाह करूंगी कुछ। जी, और कोई बताएगा मुझे? मिस राहत, मैं कल एमआर के साथ मोबाइल अपना भेजूं, जी चेक जी करवा भेज दूं? दीजिए। जी 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 भेज दीजिए। चलिए, थैंक यू मिस। तो मिस आप कैसे लेंगी क्लास फिर? वो थोड़ी आ जाएंगे 2 बजे तक वापस? या फिर मिस एमआर के मोबाइल में आप बता दीजिएगा। अब मिस वही तो कह रही हूँ, वो अपना मोबाइल अपने पास रखिए, आप क्लास लीजिएगा। मैं बच्चों को करके बताऊंगी ना, या वहां पे जो बच्चा होगा उससे कहूंगी कि बेटा करके दिखाओ, करके दो चलिए, बल्कि। जी। ठीक है मिस, ओके, थैंक जी यू। मिस राहत, ओवर टू यू। जी मिस फहद की मदर जी। मिस राहत, हाया को आप बता दीजिएगा, फिर हाया कर देंगी मेरे मोबाइल में। जी जी या बेटा मम्मा का बैकग्राउंड लगाना है, मेरे पास ही है, बोल दिया मैंने उन्हें। अच्छा जी। जी फहद की मदर ने भी हैंड रेस किया है, शायद सुन नहीं रही। जी मैम मोहम्मदी। अस्सलाम वालेकुम। आई होप ठीक ठाक होंगे सब लोग। अच्छा, वो एक्चुअली मैं जस्ट ये पूछना चाहती थी, कोई क्वेश्चन नहीं है, कि ये जीनियस एकेडमी की आप लोग बार बार बात कर रहे होते हैं, हो सकता है कहीं बात हुई हो और मैंने वो पॉइंट मिस कर दिया हो, या मैं उस टाइम क्लास में ना हूँ, तो कोई बताएंगे मुझे आप लोग जरा? जी ज़रूर। असल में जो स्टूडेंट्स हमारे साथ लेवल 1 के होते हैं, 1 साल उन्हें हो जाता है फिजिकल कैंपस में, तो फिर हम उन्हें एज अ इंटर्नशिप के लिए जीनियस एकेडमी में सरदौलत की टीम के हैंड ओवर करते हैं। ठीक है, 3 से 6 मंथ्स के लिए वो जाते हैं वहाँ पे फिजिकली। जीनियस एकेडमी है, जीनियस वो मतलब जिनके बच्चों के टास्क कंप्लीट होते हैं, इंटेलिजेंट्स होते हैं, ठीक है, उन स्टूडेंट्स को 3 से 6 मंथ के अंदर उनकी फिर डिफरेंट कैटेगरी में वो लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, एडमिशन टीम से रिलेटेड, ऑनलाइन एकेडमी से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, कोडिंग से, जितने भी हमारे पोर्टल है, जो भी हमारे बैक के ऊपर इस सिस्टम के अंदर जो भी चेंजिंग हो रही होती है या कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये वाले स्टूडेंट्स होते हैं जी। अच्छा अच्छा मिस ठीक है, मोहम्मदी, वो मैं 1 ईयर के कहाँ से बाद कह रहे जाते थे? हैं, तो जो ऑनलाइन होते हैं फिर उनका क्या सिस्टम होता है, वो किस तरह से करते हैं? जी, ऑनलाइन के लिए भी उनकी इंटर्नशिप होती है, ठीक है। फिजिकल क्योंकि जो ऑनलाइन है उन्हें तो डे 1 से ही ये तमाम चीज़ों की ट्रेनिंग दे दी जाती है, ठीक है। लेकिन जो फिजिकल होते हैं उन्हें ऑनलाइन में जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कंट्रोल करना या ऑनलाइन हम्म। चीज़ों को किस तरह से मैनेज किया जाता है, क्योंकि उन्हें फिजिकल स्कूल कैंपस की मतलब ना होता है कि सामने से फैसिलिटेटर उन्हें गाइड कर रहा होता है, ठीक है। ऑनलाइन चीज़ें समझ में नहीं उन्हें आ रही होती, जो ना कि आपको पता है कि हमारा जो सिस्टम है ये ऑनलाइन ही है, रिमोट जॉब या इस तरह से ये ऑनलाइन ही हम तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो फिर उनके वो ऑनलाइन एक्सपीरियंस के लिए उनके साथ ये किया जाता है। मोइजा। अब आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है आपकी भी। अच्छा, सही। मैं इसमें बताने लगी थी कि जिनके मोबाइल पे बैकग्राउंड नहीं लग रहा ना, मेरा भी इशू था, मैंने पहले भी मिस मोना को बताया था, हमारे मोबाइलों के वर्जन ओल्ड हैं,
तो जो जूम अब अपडेट हो चुका है ना, वो अपडेट हुआ है, वो हमारे मोबाइल से सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इससे इशू अब ये है कि लैपटॉप से ले लें तो ही इनके लग सकता है, वरना जो वर्जन ओल्ड है ना, उन पे बैकग्राउंड की ऑप्शन आती ही नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा इशू है। या तो मोबाइल नहीं ले लें या फिर लैपटॉप। जी मिस लैला। अच्छा मैम राहत, मैं मिस मुइज़ा की बात को ही थोड़ा सा ऐड करूंगी इनकी बात में, कि अगर फिर भी कोई डाउटेड है कि नहीं हो सकता है, तो अपने मोबाइल का मॉडल दे के यही क्वेश्चन चैट जीपीटी को दे दें और उससे पूछ लें कि हमने अप्लाई कर लिया, वर्चुअल बैकग्राउंड भी साथ दे दें कि अगर कोई पॉसिबल है सिचुएशन तो हमें गाइड करो ताकि हम अप्लाई कर पाएं। जी मिस लैला, मैं ये भी कर चुकी हूँ। मैंने पूरी डिटेल पहले आपको बताई थी, मतलब क्लास नहीं बताया था, कि चैट जीपीटी से लेके गूगल से लेके खुद पंगे लेने के हद तक हर चीज कर ली थी, लेकिन मेरे में तो नहीं लगा। अच्छा तो मिस मुइज़ा, एक्चुअल में मैं खुद यही हूँ कि खुद ही पंगा लेती हूँ, आखिरी सांस तक हल ढूंढती हूँ, ना मिले तो फिर दूसरे बंदे को तंग करती हूँ। जी बिल्कुल, फर्स्ट डे मैंने खुद भी ये बात ऐड की थी कि एक्चुअल में हमारे जो मोबाइल है ना, उनका अपडेट का या ओल्ड वर्जन का इशू है। अगर नहीं अप्लाई होगा, फिर भी अगर किसी को नहीं हल समझ आ रहा होता या सेटिंग नहीं समझ आती, तो वो चैट जीपीटी से भी हल ले सकते हैं। देंगे, मे भी कोई सपोर्ट कर दे, कोई सिचुएशन कोई सेटिंग ऐसी छेड़ी हुई हो जो ना वो स्टेबल कर पा रहे हो, तो चैट जीपीटी उनको हेल्प आउट कर देगा। आप तो माशाल्लाह पहले से भी इस चीज़ को कैरी कर रही हैं, आप ऑनलाइन वर्क भी करती हैं, तो आप समझती हैं। कुछ हम जैसे जो पहले बिल्कुल हाउस वाइफ हैं, वो इन चीज़ों को म्यूट अनम्यूट लाइव में बैठ के भी हमें घबराहट होती है स्टार्ट में। तो अगर उनको इशू है तो वो चैट जीपीटी से पहले खुद ज़रूर सर्च कर लें, तो मे भी हल निकल आए। थैंक यू मैम राहत। पहले ना थैंक यू अपने जी। मोबाइल का आपने वो देना है, नंबर देना है कि मेरा ये, जैसे मेरा वीवो Y28 है, वो लिख के फिर आपने सेंड करना है उसको कहना है, प्रॉम्प्ट देना है कि भाई मुझे बताओ कि मेरा ये वर्जन है, मोबाइल मेरा ये है, मॉडल ये है, तो इस पे क्या सिस्टम होगा। अगर वो सपोर्ट करता हुआ तो चैट जीपीटी आपको बता देगा, अगर नहीं करता तो वो पहले ही आपको नो कर देगा। तो मुझे तो उसने पहले ही नो कर दिया था। चलें कोई बात नहीं, इस चीज़ के ऊपर डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ, तो उनके भी आगे ये रखेंगे प्रॉब्लम अपना। अगर किसी के पास भी इसका सोल्यूशन हुआ तो ज़रूर इसके ऊपर फिर करेंगे इम्प्लीमेंट। और बाकी आज के टॉपिक की बात है, तो आज का टॉपिक जो है, अच्छा टॉपिक कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी तरफ से ही हो, जो ना कि आप भी पेरेंट्स हैं, आपकी तरफ से भी कोई टॉपिक हो सकता है, ज़ेरे बहस डिस्कस किया जा सकता है। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी और उसके बाद का टॉपिक शेयर करती हूँ। कि आज अर्निंग क्लास में हमारे साथ जो स्टूडेंट थे, उनमें से तकरीबन 18 स्टूडेंट ऐसे थे कि जब हमने मेडिटेशन जो है उसकी वीडियो प्ले की, तो उनका फोकस नहीं था। जो ना कि हमारा काम होता है, उस वक्त हम नोटिस कर रहे होते हैं कि कौन सा बच्चा इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, ठीक है जी। अब उसमें से 18 स्टूडेंट्स के नाम ऐसे थे कि जिनकी आईज ओपन थी, वो दाएं बाएं उनका फोकस था, इधर उधर देख रहे थे। तो उनके जब नाम हमने अनाउंस किए मेडिटेशन के बाद कि भाई ये बच्चे जो हैं अपना हैंड रेस कर लें, भाई आप लोगों को तो हम वार्निंग भी देते हैं, रिमूव भी करते हैं कि आप पहले 1-2 वीक के लिए ना जाके इसकी प्रैक्टिस करें कि क्लास में किस तरह से आपने जो है इंस्ट्रक्शन दी जा रही है उसको फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद हम आपको क्लास में ना ऐड करेंगे। उनसे पूछा भी गया कि बेटा आपके पास क्या रीज़न था, क्यों नहीं आप कर रहे थे, जब आपको इंस्ट्रक्शन दी गई, आपको सामने से सेशन दिया गया, बताया गया कि मेडिटेशन क्यों करवा रहे हैं। बाद में आपको एक रिव्यू वीडियो भी बनाते हैं, उसमें भी आपको सर मनोज की तरफ से, रबानिया की तरफ से, या सब लोग बता रहे होते हैं कि ये इसलिए हम करवा रहे हैं। तो काफ़ी बच्चों ने रीज़न भी बताया, इंटरनेट ये वो, ठीक है। उसमें एक बच्ची ऐसी थी कि जिनकी मदर भी वहाँ पे मौजूद थी। तो जब मामला उस स्टूडेंट्स का आया, तो मैंने बोला कि मैम आज इस तरह करें कि इसको हम नहीं हैंडल करते, इनकी मदर जो हैं, जो ना कि वो भी क्लास का हिस्सा हैं, वो एक फैसिलिटेटर भी हैं और पेरेंट्स भी हैं, हमें ज्वाइन भी डेली बेस पे कर रही हैं। तो आज भाई आप अपनी जो है ना बच्ची भी लगा लें, स्टूडेंट भी, आप इनको खुद से हैंडल करें। अब जब उन्होंने उन्हें हैंडल किया ना, बिल्कुल वो फैसिलिटेटर वाले रूप में, ठीक है, तो थोड़ी देर उन्होंने बताया, आंसर क्वेश्चन हुए, सारी चीज़ों को जिस तरह से हम लोग कर रहे होते हैं। तो अब 5 से 4 मिनट के अंदर वो कैमरा ऑफ हो गया बच्ची का, ठीक है। उन्होंने भी थोड़ी सी रिक्वेस्ट की कि भाई मैं भी ना 2 मिनट के लिए ना कैमरा ऑफ करती हूँ। हमें खैर समझ में आ गया, और बाद में जैसे उन्होंने ज्वाइन किया तो उन्होंने सामने आके अपनी स्टोरी जो है शेयर की। उन्होंने कहा भाई मेरी बेटी तो ने तो रोना शुरू कर दिया।
मतलब मैंने बड़ी मतलब आया, मैंने कहा कि क्या हो गया, आपने तो बिल्कुल सॉफ्टली उन्हें, जिस तरह से हम प्रॉपर बच्चों को गाइड कर रहे होते हैं, तो आपने भी तो इसी तरह किया। नहीं नहीं कह रही है, वो काफ़ी इमोशनल हो गई इस तरह से ना, फिर मुझे उसे मनाना पड़ गया ये वो। तो वैसे ही हम हंस रहे थे, एक फनी सा हो गया कि भाई मतलब इसका मतलब है कि हम इतने बच्चों को इतना कुछ बोल रहे सेंसिटिव भी होते हैं, किस तरह से चीज़ों को फील करते हैं, कि एक मदर की इंस्ट्रक्शन देने पे वो बच्ची कितनी वो एक इमोशनल हो गई। तो इस तरह के बच्चों के मामलात होते हैं। तो इसी से मुझे वहाँ पे भी वो टॉपिक के, आप भी यहाँ पे सब मदर्स हैं, हमें नहीं मालूम कि आप लोगों की मैनेजमेंट कैसी है घर में, कैसे बच्चों को डील करते हैं। ठीक है, आपका बच्चा इमोशनल है, किस तरह की बात उसे समझ आती है। ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि एक पेरेंट्स का एक रोल है यहाँ पे। ठीक है, हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, अगर बच्चा उसमें डीट है या वो चीज़ें नहीं कर रहा, कि आज हमारा डे था 51 क्लास का, ठीक है, और ये मेन जैसे आपको मेडिटेशन करवाई जा रही है, सेम इसी में इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करना, क्या रीज़न पूछा जा रहा था कि क्या रीज़न है, आप बोर हो रहे हो या क्या, लेकिन फिर भी इंस्ट्रक्शन को तो फॉलो करना है, आप बता सकते हैं हमें। तो ये वाला हुआ। तो इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों से भी चाहूंगी कि आप भी हैंड रेज करें, आप भी बताएं कि आपके घर में क्या मैनेजमेंट है, आप अपने बच्चों के साथ किस तरह उनको लेके किस तरह से हैंडल करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे से जो मामला है वो आगे हमने पेरेंट्स के साथ शेयर करना होता है, कि पेरेंट्स को देना होता है, उनके हैंड ओवर करना होता है कि भाई ये बच्चे हैं, इनकी अब आप ट्रेनिंग करें, इनको बताएं, इनका फोकस जब तक नहीं होगा हम इनके ऊपर वर्क नहीं कर सकते। तो बच्चों के ज़ाहिर बात है, हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है। हो सकता है किसी मदर की कितनी अच्छी मैनेजमेंट हो कि वो अपने बच्चे को किस तरह से फोर्स करती हो, किस तरह से गाइड कर रही हो कि उनके बच्चों को 1 से 2 बार में वो चीज़ें, वो इंस्ट्रक्शन समझ में आती हैं। बाज़ बच्चे ऐसे भी जिन्हें हम एक दफ़ा वार्निंग देते हैं, सेकंड टाइम जब वो बच्चा आता है बड़ा ही अमेजिंग उनका वर्क होता है, मतलब एकदम से पता नहीं जैसे कोई जादू हो गया। तो उसके पीछे शायद उनके पेरेंट्स का कुछ इस तरह का रोल होता है, या पता नहीं किस तरह से वो गाइड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास माशाल्लाह से सारे पेरेंट्स ही बैठे हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप हैंड रेज़ करें, तो बताएँ कि किस तरह से आपके बच्चे, अगर कभी इस तरह की कोई सिचुएशन हो, तो किस तरह से आप हैंडल करते हैं और उसके रिज़ल्ट किस तरह से निकलते हैं। पॉज़िटिव भी होते हैं, ज़ाहिर बात है, बाज़ बच्चे जो होते हैं, वो इस तरह के भी होते हैं। जी, मिस मोइज़ा। बाकी भी पेरेंट्स हैंड रेज़ कर सकते हैं, वन बाय वन मिस मोनिस उनसे लेंगी क्वेश्चन। मेरा एक तो सबसे पहली चीज़ होती है आपके घर का माहौल कैसा है, डिपेंड करता है बच्चे का बिहेवियर। और दूसरी चीज़ ये कि वालिदैन का आपस में रिलेशन कैसा है, वो चीज़ भी बहुत मायने रखती है बच्चों की ग्रोथ में और बच्चों के माइंड सेट में। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी फैमिली में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब सारे पढ़े लिखे भी हैं और पैनरेबल भी हैं सारे। तो उसमें ये है कि मैंने शुरू से ही अपने दोनों बच्चों को ना बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट कर दिया था। मतलब वो छोटे-छोटे काम मैंने नहीं किए इनके, मैं नहीं करती थी क्योंकि ये खुद ही करते थे। मतलब 3-3 4-4 साल के हुए हैं, तो इन्होंने कपड़े अपने खुद तय करने हैं, खुद प्रेस करने हैं। प्रेस करने का शौक होता था लेकिन मैं पास खड़ी होती थी, लेकिन इनसे मैंने करवाए। तो ये कि इनको मतलब ये मोहताज नहीं है मेरे इतने। दूसरी बात ये है कि जब ये क्लास में थोड़ा-सा होता है मसला, तो मैं लाइव क्लास साथ ले रही होती हूँ इसके। जो-जो इसकी इनकी फैसिलिटेटर टीचर्स वगैरह जो कह रही होती है, मैं फ़ौरन इसको मतलब मैं इसको मुसलसल गाइड कर रही होती हूँ कि अब ये कह रहे हैं ना ये करो, ये कह रहे हैं ना ये करो। तो ये है कि लड़का और लड़की दोनों में ज़रा डिफरेंस है, क्योंकि बेटियाँ जल्दी बात मान लेती हैं, लड़के ज़रा चिढ़ भी जाते हैं कभी-कभी। तो मेरा तरीका यही है कि पहले तो मैं बहुत प्यार से कहती हूँ, जब प्यार से बात ना चले तो फिर थोड़ा-सा डाँट-वूँट भी लेती हूँ, मारती नहीं हूँ। मारने वाला सेशन पहले पूरा कर चुकी हुई हूँ। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरी बात मानते हैं। तो शुक्र है कि वो माहौल ही ऐसा बना हुआ है कि मतलब चीखने-चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत प्यार से अगर एक दफ़ा कहते हैं तो ये बात मान लेते हैं बच्चे। हाँ, तो ये है कि बेटे को थोड़ा-सा मुसलसल गाइड करना पड़ता है। तो वो ज़रूरत भी है, अभी है भी 14 साल का सिर्फ़। तो ये है कि ऐसा-ऐसा अगले फ्यूचर का इसको थोड़ा-सा बेनिफिट बता के कि बेटे आपने ये करना है, आप करोगे, अभी मेहनत कर लोगे तो आगे आप कुछ बन जाओगे, वरना फिर सारी ज़िंदगी खपाई ही है। तो बस इस तरह से मतलब प्यार से भी, लाड से भी और कभी-कभी मतलब आँखें दिखा के भी ये है कोई कि लालच वगैरह देती हैं, कोई खाने का, कोई पार्टी का, कोई ड्रेस का, कुछ भी ऐसा होगा? अ, लालच नहीं देती। हाँ, इनका अ, ये नहीं होता, जब ये मेरी बातें मानते हैं ना, तो फिर मैं इनकी भी बातें मान लेती हूँ। तो ज़्यादा डिमांडिंग दोनों नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, लालच नहीं देती बिल्कुल भी, क्योंकि फिर वो बच्चा ना आदी हो जाता है उस चीज़ का। आपको वैसे ही वालिदैन की बात माननी चाहिए ना बगैर लालच के। तो वैसे ये है कि इनको हम खुश रखते हैं।
ताकि ये हमें खुश रखें। तो शुक्र है अल्लाह का, मतलब ओबीडियंट बच्चे हैं। जबरदस्त है जी। बच्चों को खुश रखें ताकि बाद में वो भी आपको खुशी रखें, ये वाली बात अच्छी थी जी। मिस तूबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैम, मिस तूबा आपने हैंड रेस किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी, सलाम मैं जी। भी यही बताना चाह रही थी बच्चों को किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा मुश्किल वक्त जो पहले था, जब बच्चे थोड़ा छोटे थे तो बहुत मुश्किल होता था उनको हैंडल करना, लेकिन अब माशाल्लाह समझदार हो गए हैं। और सबसे ज्यादा ये कि इस स्कूल में आके मुझे बहुत कोऑपरेट हुआ है, इस स्कूल ने बहुत कोऑपरेट किया है बच्चों की काउंसलिंग करने में। साथ साथ स्कूल ने भी बच्चों को बहुत अच्छा बना दिया माशाल्लाह तरबियत में, और हम भी साथ साथ तरबियत कर रहे थे। तो दोनों ने जब मिलके काम किया तो बच्चे माशाल्लाह बहुत ज्यादा मेच्योर हो गए हैं, अपनी उम्र से भी ज्यादा समझ में आता है कि हाँ बच्चे अब बड़े हो गए हैं। इतनी उम्र नहीं है जितना वो माशाल्लाह बात अच्छी करते हैं। अब स्कूल से बहुत फर्क आया है अल्हम्दुलिल्लाह उनकी लाइफ में। तो अभी कुछ जगहों पे अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, अब्दुल्ला अब्दुल्ला बहुत ज्यादा जो है ना हाइपर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जो है ना गुस्से के तेज हैं, वो समझते नहीं है। तो बस उनको जरा हैंडल करना मुझे बहुत मुश्किल होता है। तो अगर मैं हैंडल नहीं कर पाती तो इनके बाबा उनको हैंडल कर लेते हैं, दोनों मिलजुल के करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बात मान लेते हैं। आज की बात ले लें, मैं चाह रही थी हालात खराब है बच्चे छुट्टी कर लें, लेकिन माशाल्लाह बच्चों में इतना इंटरेस्ट है कि बच्चों ने कहा नहीं मम्मा हम जाएंगे, वरना ऐसा ना हो कि कोई क्लास मिस हो जाए, हमारा लॉस हो जाए, तो हमें जाना है। तो माशाल्लाह बच्चे खुद ही इतना समझदार हैं कि हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती उनको अब समझाने की। अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल से आके बहुत ज्यादा मुझे जो है ना फायदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुझे पहले स्कूल से नहीं होता था। बच्चे अब माशाल्लाह खुद ही अपने काम भी करने लगे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और सदीम तो माशाल्लाह बहुत पहले भी अच्छे थे, अब भी बहुत अच्छे हैं। अगर कभी वो मेरी बात नहीं मानते तो बस मैं उनको यही थोड़ा सा वो कर देती हूँ कि ठीक है फिर तुम फ्रेंड्स में नहीं जाओगे, फिर तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, तो फौरन फिर बात मेरी मान लेते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे चल रहे हैं बच्चे। सही मिस तूबा, ये लास्ट वाली जो बात आपने कही ना कि आप उन्हें धमकी दे देती हैं कि फिर ये नहीं करोगे, ये वाली बात भी बड़ी जी अमेजिंग होती है, ये भी असर करती है, फार्मूला भी अच्छा है जी। मिस बहुत मोनिस। बहुत असर करती है। जी, बहुत अच्छा लगा आपका भी सुन के और मिस मोइजा का भी सुन के। मिस राहत, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कुछ चंद यहाँ पे जो मेरी बहनें बैठी हुई हैं उनसे, कि चलें ठीक है बैकग्राउंड नहीं लग रहा, लेकिन एटलीस्ट इस तरह बैठिए जैसे मिस सदफ बैठी हुई हैं, या यूं समझिए जिनका बैकग्राउंड नहीं लगा हुआ और कैसे कौन बैठा हुआ है उस तरह। तो प्लीज उस तरह बैठिए, ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग ना सब नीचे की तरफ देख रहे हैं। जैसे मिस राबिया अंसारी हैं, उनका भी कैमरा मैंने कई दफा कहा है कैमरे को बिल्कुल चेहरे के सामने यूं रखिए, ना कि यूं। तो चेहरे के सामने रखने से एक प्रोफेशनल वे लगता है मिस, क्योंकि ये देखिए लाइव जा रहा है, वर्ल्ड वाइड देखा जाता है इन अ सेंस कि किसी की भी नजर से गुजरता है तो वो क्लिक करके रुकता जरूर है कि यार ये क्या हो रहा है। तो हम ही प्रोफेशनल वे में नहीं बैठे हुए, हमारा बैकग्राउंड नहीं लगा हुआ, चले ये मसला भी कल इंशाल्लाह सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन कोशिश करें, अभी भी मिस राबी आप सही नहीं बैठी हुई, कैमरे को बिल्कुल फेस के सामने रखिए। कल से कोई टेबल कोई ऐसी जगह मुख्तलिफ कर लीजिएगा। जैसे मिस सदफ माशाल्लाह बिल्कुल सही बैठी हुई है, मदर ऑफ हया आप भी बिल्कुल सही नहीं बैठती मिस, आपका भी मोबाइल नीचे रखा हुआ होता है और आप बिल्कुल नीचे कहीं देख रही होती है ना। तो इसको प्लीज ठीक कीजिए। बैकग्राउंड का अस्सलाम भी वालेकुम मसला मैम। इंशाल्लाह, हाँ जी, बैकग्राउंड का भी मसला इंशाल्लाह कल सॉर्ट आउट करते हैं, हम कुछ करते हैं इस सिलसिले में भी। और मिस मोहम्मदी से मैं कहना चाह रही थी कि मिस मोहम्मदी, जीनियस एकेडमी भी एक इदारा है, एक जगह है रिहान भाई की बनाई हुई, एक बाकायदा तौर पे एक प्रॉपर स्कूल की तरह है वो जगह भी, जहाँ पे जैसा मिस राहत ने एक्सप्लेन किया कि ये बच्चे जाते हैं। तो जीनियस एकेडमी कोई जैसे कहते हैं ना कि मुनव्वर कैंपस का एक छोटा सा कमरा नहीं है, या कुरंगी कैंपस का ही एक छोटा सा कमरा नहीं है, बाकायदा एक इदारा है, और काफी दूर है कुरंगी कैंपस से भी और मुनव्वर कैंपस से भी। सो वहाँ पे जयप्रकाश भाई उसको हैंड ओवर करते हैं, दौलत के भाई हैं वो। तो जयप्रकाश भाई वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे कॉलेज के भी हमारे स्टूडेंट मौजूद हैं, और ये इंटर्नशिप के लिए जो बच्चे जाते हैं जिनका 1 ईयर पूरा हो चुका वो भी वहाँ पे होते हैं। और वही वाली बात है कि उस चीज के साथ साथ उनको ओसो जी और जो भी अफ्तारी के प्रोग्राम्स होते हैं, या आपने शायद मेरी वीडियो देखी होगी कि बर्थडे भी थी वहां पे और एक किस्म की फेयरवेल भी
शायद मिस मोनिस थी का कि जो बच्चे इंटर्नशिप इंटरनेट। पूरी कर चुके वो भी एक रेहान भाई की तरफ से बनाया हुआ इदारा है। जी, तो मिस राहत का सवाल था बच्चों के हवाले से, बच्चों की जी तरबियत के मिस हवाले से राबिया ने कर। हाथ जी खड़ा। जी मिस जी राबिया। मिस राबिया। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मेरे साथ वाले यही प्रॉब्लम है कि इसमें ना कैमरे का इशू भी है और रखती तो हूँ मोबाइल, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ये सेट क्यों नहीं हो पा रहा है। तो मैं रात वाली क्लास इंशाल्लाह ज्वाइन करूंगी, तो इसमें इशू होता है मोबाइल का और रोशनी भी नहीं होती कमरे में। मिस बात मोबाइल की नहीं है, आप घर में किसी और कोने में बैठ जाइए, घर आपका ही है। मैं जैसे जाऊं जीऊं, मैं जहां चाहूं बैठूं, तो आप कहीं भी बैठ जाइए और चेहरे की कोशिश कीजिए मिस, सामने रखिए ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल चेहरे के सामने लेवल रखा पे है होगा। जी लेकिन देखिए अब इनका सही हो गया मदर ऑफ हया का। मिस प्लीज कल से ऐसे बैठिएगा। और रात वाली क्लास में तो मिस राबिया दौलत भाई होते हैं, वो तो और इस चीज को आपको पकड़ कर वो लेंगे आपकी। मैं तो फिर भी प्यार कैम मोहब्बत वो से उस बोल वक्त रही हूँ। लैपटॉप होगी ना मेरे पास। अच्छा चलें, ठीक है ठीक है। मिस वैसे भी कोशिश करें, अगर दोपहर में भी आ रही हैं, देखिए 1 मिनट में मिस आयागा ठीक हो गया ना। बिल्कुल। मिस नगमा आप भी कोशिश कीजिए थोड़ा सा इसको मोबाइल को या लैपटॉप को चेहरे के उसमें ले आइए। जी अस्सलाम वालेकुम मुश्क और मनाप की वालदा, आपके यहाँ तो दो दो एक्सपर्ट हैं, आप उनसे कहें ना बैकग्राउंड आपको लगा के दें मिस। वालेकुम सलाम जी। मेरा लगा हुआ था लेकिन पता नहीं बच्चों ने रिमूव कर दिया है। जी जी मिस, तो आप जी उनसे कहिएगा दोबारा लगाएं, क्लास में कहिएगा हमें भी डांट पड़ती है तुम्हारी तरह। मैंने डांटा नहीं जी है, जी मैंने बात बिल्कुल कही है, सॉरी। इंशाल्लाह मैं बोल दूंगी। नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, मैं उनको बोल दूंगी कि लगा दें। जी मिस थैंक यू सो मच। जी मिस राहत के सवाल पे और कोई जवाब देना चाहेगा, बच्चों की तरबियत के हवाले से, घर के माहौल के हवाले से? नहीं ना, सभी बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे भाई, वन बाय वन। मिस मोहम्मदी पहले आप ऐड करें। अच्छा जी, थैंक यू। वैसे तो आप सबको पता है जैनब होम स्कूल होती है, तो वो बड़ा कंट्रोल में है। शायद वही बात कि बच्चियां ज़रा कंट्रोल में ही होती हैं, और उसको डील करना कोई बहुत मुश्किल नहीं होता मेरे लिए। ये कि थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ, फॉलो कर लेती हूँ उसको। और मैं जब घर नहीं होती हूँ तो फोन पे मेरा उससे कांटेक्ट रहता है, मतलब 1.5-2 घंटे बाद मैं पूछती रहती हूँ क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है। मोस्टली तो काम अच्छी तरह चल रहा होता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी काम हो पाते, डिसिप्लिन नहीं भी रहता। तो ज्यादातर ये एकेडमी के काम जैसे कि ऑनलाइन है, इन चीजों पे नहीं कोई मसला हमारे यहाँ क्रिएट होता। हमारे यहाँ तो एक ही मसला होता है कि जब मैं घर जाती हूँ तो मुझे देखते ही कि इसको पता चलता है कि भाई मम्मा आने वाली हैं, तो वो जो जो उसने खाना होता है ना, और पूरे दिन उसने नहीं खाया, तो वो पकड़ के हाथों में फिर रही होती है और वो खा रही होती है। बस वो एक पॉइंट होता है कि जब मैं उस पर गुस्सा कर देती हूँ, आमतौर से कभी ज्यादा हो जाए, थोड़ा बहुत डांट पड़ जाए, तो जैनब क्या करती है कि मैंने तो यही देखा है कि वो जाके ना अपना काम शुरू कर देती है, शायद लैपटॉप खोल ले या कोई और काम शुरू कर दे कि मैं जरा कम बोलूँ ना। अदरवाइज कंट्रोल हो जाता है, कोई ज्यादा सिचुएशन खराब नहीं होती। बस एक ही प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, और कोई प्रॉब्लम नहीं होता ज्यादा। और इसके अलावा स्टडीज में कभी ये होता है कि बहुत ज्यादा सीरियस होके वो यही वाला जो ऑनलाइन काम होता है ना, ये बड़ा बहुत सीरियस होके कर रही होती है, इतना हो जाती है कि वो टेंशन लेने लग जाती है कि मतलब उसे स्ट्रेस होने लग जाता है कि ये मेरे काम नहीं हो रहे, मैं क्या करूं, इसको कैसे सॉल्व करूं। और फिर मैं उसको कहती हूँ कोई बात नहीं, कोई काम नहीं भी हो रहा तो इट्स ओके, कुछ नहीं हो जाएगा, कोई काम नहीं भी होगा तो कुछ नहीं होगा। मतलब मैं उसके साथ लिटरली 3 4 5 दफा ये लाइन्स हम लोग दोहराते हैं कि कुछ भी नहीं हो जाएगा, सेट हो जाएगा सब कुछ। तो आमतौर से यही हो रहा होता है हमारे यहाँ। बाकी और कुछ आप लोग पूछना चाहें मुझसे बुक्स के बारे में? जैसे मैंने मुइजा आपके कहने पे मैंने बुक शेयर की थी। मिस मुइजा आपकी आवाज नहीं आ रही फिर। अब आ रही। जी अच्छा, मैं कह रही थी हाँ जी, बहुत शुक्रिया। वो बुक्स मैंने फिर गूगल पे सर्च की, उनको मैंने विजिट किया बुक्स में कि उसमें उनमें क्या है ऐसा कि मतलब जो हम अपने बच्चों को दें पढ़ने के लिए। तो माशाल्लाह बड़ी वंडरफुल बुक्स हैं। इस टाइप की बुक्स हैं मेरे पास भी। अल्हम्दुलिल्लाह 3 लाइब्रेरी हैं घर में पूरे, एक मेरे कमरे में ही है।
तो इस तरह की बुक्स पड़ी हुई हैं हमारे पास, मतलब क्या कहते हैं, ऑथर के नहीं है लेकिन ऑथर चेंज है, लेकिन काइंड ऑफ बुक्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे थोड़ी सी गाइडलाइन मिली कि हाँ इन बुक्स के जरिए भी हम अपने बच्चों को है वो नॉलेज दे सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हमारे जैनब ने अब अपने फ्रेंड्स के साथ ये सर्कल बना लिया है, एक अपने जो मोहल्ले में हमारे हैं बाकी लोग, कि उसने अपनी फ्रेंड्स बनाई हुई हैं और फिर ये लोग बुक शेयर करते हैं आपस में। जैनब भी उनसे लेकर आती है और अपनी बुक्स भी उनको देती है। और इसमें मोस्टली जो बुक्स है ना हमारे पास, मोस्टली ऐसी बुक्स हम लोग ओल्ड बुक सेंटर विजिट करते रहते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, पिंडी और इस्लामाबाद में, और वहां से जो जो मिलता है ना, अब समझे कि एक वक्त में बल्क में उठा उठा के ले आते हैं। तो बच्चे भी इंजॉय करते हैं इस चीज को ना, मतलब उनकी रूटीन बन गई ये एक्टिविटी करना। तो एक फन एक्टिविटी एक्चुअली उनके लिए कि ओल्ड बुक हाउस जाना और विजिट करना। यहाँ पे एफ10 में एक बहुत जबरदस्त जगह है, बहुत बड़ी शॉप है, और मतलब लिटरली फन होता है वहाँ, 1.5-2 घंटा बड़ा अच्छे से गुजरता है। इंजॉय करते हैं बच्चे एक्चुअली इस चीज को। ज़बरदस्त हो गया जी। किसी और पेरेंट्स का कोई क्वेश्चन या कोई पॉइंट ऐसा हो जो आप शेयर करना चाह रही हो? किसी का नहीं है। चलिए मिस मोनिश, मैं करती हूँ आपसे और मिस लैला से अपने एक एज अ मदर कि मुझे किन किन चैलेंजेस को आजकल फेस करना पड़ रहा है। जो ना कि आपको पता है कि बच्चे मिच्योर हो चुके हैं, लेवल 2 के स्टूडेंट्स हैं, माशाल्लाह से एचआर डिपार्टमेंट को मैनेज कर रही हैं बेटी हिजाब, और सोशल मीडिया को मैनेज कर रहे हैं उस्मान। तो आपको पता है जब ओहदा बड़ा होता है थोड़ा सा दिमाग भी बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो मुझे स्टार्ट में ना शुरू में बिल्कुल ऐसा लगता था कि बहुत इजी है इन लोगों को ना गाइड करना, जो भी मैं कह रही होती थी बड़े इजी से वो चीज़ों को पिक करते थे और वैसा ही करते थे। लेकिन अभी मैं कुछ टाइम से ये चीज़ें देख रही हूँ कि जो ना कि आपको मालूम है कि सुबह से जाते हैं शाम में ही घर में आते हैं, तो जो भी मैं बोल रही होती है ना वो कह रहे हैं मम्मा नहीं, हम खुद ही करेंगे। तो मुझे एकदम से ये होता है कि यार एक पेरेंट्स का रोल है, हम खुद भाषण देते हैं यहाँ पे कि पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को 3 एंगल्स हैं, मैनेजमेंट है, पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं। जब तक पेरेंट्स वाला आप पेरेंट्स की बात नहीं सुनोगे तो उनका जो पॉइंट है वो किस तरह से आप पिक करोगे, ठीक है। तो वो मेरे वाले बच्चे, मुझे यूं लगता है जैसे आजकल मेरे हाथों से ना कुछ निकल गए हैं तो वो कुछ सरहान की संगत, ठीक है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस उन्हें दी जा रही है, अच्छी बात है, ठीक है। कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कुछ उनमें वो वाली चीज़ जो है आपको बताया कि पूरी जो फाउंडेशन है उसके ऊपर उन्हें एक रिस्पेक्ट वाला ओहदा भी दिया गया है। पर मुझे पता नहीं क्यों यूँ लग रहा है जैसे मेरे बच्चों का साइज ना कुछ बड़ा हो गया है और मेरे वो कंट्रोल से कुछ बाहर जा रहे हैं। कोई टिप इसके बारे में मुझे आप दें। मिस लैला के पास भी काफ़ी इस तरह के होते हैं। जी वैसे मिस, जी जी बोले बोले, आप बोले। बदतमीज नहीं है, माशाल्लाह से रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, सारा कुछ है, लेकिन रिस्पेक्ट मतलब वो जो एक होता है ना कि आप जैसे पहले बात करते थे वो गौर से सुनना, ओके मम्मा जी, यानी कि आपने जो गाइडलाइन दे दी वो मजे की है, बाकी सारी दुनिया झूठी है, मम्मा ने जो कह दिया उसी लाइन पे चलना है। लेकिन अब कुछ टाइम से मुझे ये मिसिंग लग रही है। राहत, मैं आपकी फीलिंग समझ रही हूँ क्योंकि समटाइम्स मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। और फिर जैनब जो है ना इन्फोर्स करती है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। तो शायद ये पेरेंट्स के लिए ना एक डिजेक्शन हो रही है कि अब हमारे बच्चे जो है ना वो ग्रो कर गए हैं एक्चुअली ना, प्री टीन एज में तो पहुंच ही गए हैं। आपके बच्चे कितने बड़े हैं? मुझे आइडिया नहीं है उन बच्चों का। जी सो अगर 15 वो साल 12 की क्रॉस, है, 15 साल। हाँ जी जी। हाँ ठीक है, तो वो 15 years old। एग्जैक्टली आफ्टर 12 तो मतलब बच्चों में ये चीज आ जाती है नेचुरली, और ये होनी भी चाहिए। तो अभी हम लोग को चेंज होना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जी मिस राहत, मैं कुछ कहना चाह रही थी आपकी बात के हवाले से। जी जी। देखिए जी मिस जी। राहत, एक तो ये होता है कि माशाल्लाह उस्मान और हिजाब चले एक ओहदा संभाल रहे हैं, ठीक है। अगर हम एक जनरल भी बच्चे को, नॉर्मल बच्चे को जो स्कूल गोइंग, जस्ट स्कूल गोइंग और ट्यूशन मदरसा ये वाला बच्चा है ना, तो मिस मोहम्मदी ने जैसे कहा ये टीन एज में दाखिल हो रहे होते हैं। तो मिस ये तो एक नेचुरल चीज है कि मिस अम्मी आपको नहीं पता, हमें ज्यादा पता है, ये तो नेचुरल है, ठीक है। लेकिन मिस जो आपके बच्चों में चेंजिंग आई है, जो बिहेवियर में चेंजिंग आई है, उसके लिए मैं इस चीज की गवाही दूंगी मिस के जो सर रेहान के घर चला जाए ना, जो सर रेहान की छतर छाया में आ जाए, छतर छाया, उर्दू 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 प्लीज कोई वर्ड लिया है उर्दू का, आप लोग समझ गए होंगे। तो मिस ये उनका कसूर नहीं है, फिर उनकी ना पूरी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है,
फिर उनका बात करने का तरीका, इवन मैंने यहाँ पे मनाहिल को देखा, मनाहिल भी यहाँ पे आती हैं, तो मैं ये नहीं कह रही कि एटीट्यूड आ गया, मैं ये कह रही हूँ कि उनको फिर अपने घर वाले जो है ना, लगता है कि नहीं यार, इनको हमें ही गाइडलाइन देनी है कि मिस, मम्मा या बहन या भाई, तुम इस तरह नहीं, इस तरह सही हो। मैं उसमें नहीं कह रही कि मम्मा आपकी तरबियत ही गलत थी, उस बात पे खुदा ना खास्ता मैं नहीं कह रही, लेकिन बस वो बॉडी लैंग्वेज चेंज होने से, या यूं समझे कि सररिहान के घर में जाने के बाद से जो इनको एनवायरनमेंट मिलता है ना, तो उसकी वजह से मिस इनका कुछ माइंडसेट भी चेंज होता है, और फिर ये चाहते हैं कि यार वो चीज जो हम करते चले आ रहे थे, हमारे आबाओ अजदाद से हम कर रहे थे, वो चीज जो है ना, शायद वो सही नहीं थी, अब जो हम देख रहे हैं आगे जो करने जा रहे हैं, ये चीज हम अपने घर में थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करें इसको। तो मिस ये एक नेचुरल सी बात है, इसमें आप ये नहीं समझे कि बच्चे हाथों से निकल गए, या मिस राहत जो है वो प्रिंसिपल का ओहदा संभालने के बावजूद, या एक पेरेंट्स काउंसलर का ओहदा संभालने के बावजूद कुछ नहीं जानती। मिस ये उनका कसूर नहीं है, उनको वहां पे एनवायरनमेंट ही ऐसा मिल रहा है कि वो नेचुरल है, बच्चों के साथ जो भी वो कर रहे हैं ना, वो नेचुरल है। मैंने जितना देखा है, मैं भी रेहान भाई के घर रही हूँ, साल भर जाती रही हूँ वहां पे, तो मुझे पता है मिस ये सब कुछ। मिस अस्सलाम मोनिस वालेकुम। आगे तो मुश्किल होने वाला फिर सीन लगता है। जी मिस मोइजा आप भी बोलिए। मिस मोइजा एक मिनट दीजिएगा, मिस मोइजा एक मिनट। जी जी मिस राहत, रात वाले सेशन में आप नहीं होती, तो वहां पे एक भाई हमारे लाहौर से आते हैं, तो मिस लैला इस चीज की गवाह है कि मैंने उन भाई से कहा था कि भाई या तो आप पंजाबी सीख जाएंगे, या तो मैं पंजाबी सीख जाऊंगी, या आपको हम उर्दू सिखा देंगे। उनका बहुत ज्यादा पंजाबी लहजा है ना, बहुत ज्यादा है। तो यही मैं कह रही हूँ मिस राहत, या तो आप उनके रंग में ढल जाएंगी, या फिर दो अलग अलग वे में चलेगा आपका घर ना। जी मिस मोइजा जी। ये वाली फीलिंग मुझे भी कभी कभी आती है, क्योंकि बेटी मेरी 18 साल की है माशाल्लाह, और बेटा तो जाहिर है इनकी अपने 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 कमरे हैं, अपने जब सारी प्राइवेसी है, ये वो सारा लगता है कि ये मुझसे दूर हो रहे हैं, या होता है माँ का दिल चाहता है कि बात करने को। मेरा एक तरीका ये है कि मैं फिर दिन में 5 से 6 दफा इन दोनों को हक करती हूँ। उससे ये होता है कि अब मेरा कंट्रोल रहता है कि भाई माँ मैं ही हूँ। तुम लोग जो मर्जी कर रहे हो, जहां तक मर्जी पहुंचे हो, माँ मैं ही हूँ। तो अच्छा, उससे क्या होता है, जब मैं हक करती हूँ इनको, तो थोड़ी देर के लिए ना ये बच्चे बन जाते हैं, फिर मुझसे बात करेंगे और अपनी चीजें डिस्कस करेंगे, और दिस एंड दैट। तो ये थोड़ा सा हरबा करके देखें कि आप काम तो खैर जो करते हैं अप्रिशिएट मैं बहुत करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उससे ये कि आप बच्चों को ना हक करना शुरू करें। तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा, और बच्चे आपसे अपनी हर बात ऐसे शेयर करेंगे, और अपने काम को भूल कर थोड़ी देर के लिए आपका प्यारा टाइम देंगे वो। तो ये बड़ा मज़े अच्छी मतलब टाइम होता है एक माँ के लिए। जबरदस्त है, ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात कही आपने, इसका भी वाकई बड़ा असर होता है। लेकिन ये करने के बाद जब मैं उन्हें कोई काम बोलती हूँ ना, तो फिर उन्हें दोबारा होता है कि मम्मा आपने काम करवाने के लिए ये किया था। ये वाला सीन हो जाता है। जी मिस नगीना। जी जी मिस अस्सलाम नगमा। जी जी। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी वालेकुम जी सलाम। लगता है कि या आप जैसे कह रही हैं कि जो है ना बच्चों में चेंजिंग आ जाती है, तो ये भी बात सही है कि इनकी जो है ना एज का मसला होता है। जब ये बच्चे 12 से आगे होते हैं, तो इनका जो है एक अलग ही इनका सिस्टम ही चल रहा होता है दिमाग के अंदर, कि अब जो है ना हम बड़े हो गए हैं, और ये यानी कि पेरेंट्स की बात को नहीं दिया जाता इतना कि आपको नहीं पता मम्मा, हमें पता है इस इस बारे में। तो फिर ये मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे मिस मुइज़ा ने बोला कि जो है बच्चों को हक करना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए। अब ये है कि हर वक्त हम उनके ऊपर गुस्सा भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये है कि हम उनको एहसास दिला सकते हैं कि इनको एक एक चीज का हमें एहसास दिलाना है। देखो अगर ये तुम कर रहे हो, तो इसमें जो है ना सबसे ज्यादा हमारा है रोल। हम तुम्हें टाइम दे रहे हैं, हम जो है ना पैसा भी खर्च कर रहे हैं, यानी कि मेरा बेटा है हयान, तो मैं उसको बार बार मैं बोलती रहती हूँ कि जो है हम तुम्हारे ऊपर एक जो है ना टाइम दे रहे हैं, टाइम खर्च कर रहे हैं, फिर जो है ना पैसा भी जा रहा है हमारा। तो उनको जो है ना एहसास है इस चीज का कि मेरी मम्मा पापा मेरे ऊपर मेहनत कर रहे हैं इस चीज पे।
तो मैं बोलना चाहूंगी कि थोड़ा जो है ना हमें बच्चों को टाइम देना चाहिए, थोड़ी उनकी भी मानना चाहिए कि आराम से उनके साथ बैठें और जो है ना प्यार मोहब्बत के साथ उनके साथ करें, सर पे हाथ फेर दिया या उनको जो है अपने गोद में लिटा लिया उनको, तो वो ऐसे हो जाते हैं बच्चे जैसे छोटा बच्चा नहीं होता वैसे हो जाते हैं। अभी कल मैंने अपने बेटे से पोस्ट मैंने बनवाई थी अपने उसके लिए, मेकअप वगैरह के लिए, कि मुझे डील के लिए मुझे ये करवाना है, लेकिन उन्होंने पोस्ट बना के दी, लेकिन मैंने उन्हें ना खुशी में मैंने उनको जो है ना 500 रुपीज मैंने दे दिए कि वो इतना खुश हुए, तो उन्होंने जो है ना मेरी 2-3 पोस्टें मेरी और बना दी उन्होंने, कि जो है ना हमें ही बच्चों को इस काबिल ही करना है, जब तक हमें घर से ये सब चीजें हम नहीं देंगे तो वो कैसे होगा। और ये है कि मेरे हयान में जो था कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन ये है कि स्कूल वाले भी हैं ऐसे कि उन्होंने भी कॉन्फिडेंट उनको करा, और ये मेरा भी होता है घर में कि उनको मैं एक एक चीज में बताती रहूं, उनको एहसास दिलाती रहूं मैं, और जब मैं उनको एहसास दिलाती हूँ वो मेरा माशाल्लाह से बेटे हैं, लेकिन मुझे जो है ना बेटी का एहसास नहीं हुआ है कि बेटियां होती हैं तो काम वो करवाती हैं घर का। ये बेटे भी ऐसे होते हैं, लेकिन उन्हें जो है ना एहसास दिलवाना पड़ता है, तो वो सारी चीजें ही करने लग जाते हैं आराम से। अभी वो आते हैं स्कूल से मेरे साथ हेल्प करवाते हैं अफ्तारी में, तो मैं उनको अप्रिशिएट भी करती हूँ, सबके आगे मैं बोलती भी हूँ, तो वो खुश होते भी हैं कि मेरी जो है ना तारीफ हो रही है सब जगह। बस ये है कि बच्चों की माननी भी चाहिए हमें। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, तो हमें इनके ऊपर जो है ना सब चीजें यानी के लाद दें। तो ये है कि क्या नाम है, सारे जो है पेरेंट्स मेरी इस बात से जो है एग्री होंगे कि बच्चों की भी माननी चाहिए बात। शुक्रिया। थैंक यू मिस, थैंक यू, बहुत ज़बरदस्त आपने भी बात बोली। जी मिस मोनिस, असल में यहाँ पे मसला आ जाता है कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, अब उन्हें मम्मा से तो वो वाली बात है ना, कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो तो खुद देने वाले बन चुके हैं ना, जो कि वो हमारा वो नारा था ना सरहान वाला कि बच्चों को इंडिपेंडेंट करना है, तो वो तो हो गए। मुझे असल में जो टेंशन होती है वो यही चीज़ होती है, पहले तो हम खुद किसी ना किसी लालच दे के कुछ ना कुछ कर लेते थे, ठीक है, तो अब वो इस स्टेज पे आ चुके हैं, तो मैं वही, जब रेहान भाई से भी बात होती है ना, तो मैं कहती हूँ कि भाई वो 1 लाख वाला जो नारा है ना, उसे तो थोड़ा सा और आगे ही ले जाएं आप, ठीक है, नहीं तो वही वाली बात है, ये तो खुद के ऊपर वाले ही बन गए हमारे तो। चले जी बिल्कुल मिस राहत, सही कहा आपने, लेकिन मिस राहत सब सब जाहिर है यहाँ पे माए हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनके बच्चों को इनकी आंखों की ठंडक बना के रखे, आमीन सुमा आमीन। लेकिन वही बात है मिस राहत, क्योंकि जाहिर है हदीस के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि माल भी आजमाइश है, औलाद भी आजमाइश है, तो हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि देखिए बेटी एक अपने घर को जाएगी और दूसरे घर की बेटी को हम बहू बना के लाएंगे, तो हमें वो चीज एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए जो हम अभी अपने बच्चों को कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं बहुओं वाली भी हूँ, दामादों वाली भी हूँ, नानी दादी भी हूँ, तो मैं इस पूरे कहते हैं ना जेनरेशन बाय जेनरेशन गुजर चुकी हूँ। तो मैं अपने तजुर्बे से यही कहूंगी कि ठीक है, जब तक वो बच्चे हैं, जब तक आपके कंट्रोल में है, जैसे मिस नगमा ने बताया कि भाई उन्होंने 500 रुपए दे दिए, इसी तरह एक और मिस ने बताया कि उन्होंने हक कर लिया, किसी और मिस ने बताया कि चलो भाई कुछ नहीं, बच्चे को कहा चलो तुम्हारी पसंद क्या, जिंगर मंगा देते हैं, हम पिज्जा मंगवा देते हैं, तुमने फला काम बहुत अच्छा किया, ऐसी अप्रिशिएशन रखे। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, आगे जो वक्त आने वाला है, एआई का वक्त नहीं, कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, इवन अपनी औलाद से भी नहीं रखनी चाहिए। अल्लाह ताला अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। तो बहुत शुक्रिया, इस सेशन को यहीं पे इख्तिताम करते हैं, क्योंकि हमें दूसरी क्लास में भी जाना होता है। आप सबका सपोर्ट का, आप सबकी प्रेजेंस का और आप सबके ट्रस्ट का हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखती है ये बात। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होगी। इस खूबसूरत सेशन का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। और थैंक यू मिस हया, आपने बिल्कुल सही पोजीशन संभाल ली है मोबाइल की। तो हम उम्मीद करते हैं, और मदर ऑफ उमर शुरू से लेके आखिर तक आपका यही वाला पोज है। अगर आप लाइव उसमें नहीं है, नहीं लाइव है आप, आपका कपड़ा हिला है पीछे, तो आप एक्टिव है, इसका मतलब है
तो हमने ये नहीं कह सकते कि आप स्टक हैं। सो मिस कल से प्लीज पोजीशन भी सही कीजिएगा, उसकी हमारी तरह बैठिएगा, और प्लीज लैपटॉप को कोशिश कीजिएगा कि चेहरे के सामने रखिएगा। तो थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज। हाफिज।